with it, you can start with the recording. Sure, ma'am. Recording will be started now. Okay, good morning, everyone. I would like to welcome you for the our e-learning sessions we planned started from the last week. So for our today's guest is Mr. Atul Grover, who is our alumni, passed in 2008, MCA pass out of the batch 2005-8 from TIMT, and currently working as ServiceNow ITSM business analyst and functional consultant. Atul is carrying a close to 10 to 11 years of experience in IT and worked in insurance, telecom, and financial domains. Prior to the current organization, he worked with Vodafone, Shared Services, Wipro, Infosys, and Accenture, and many more to give it a name. And few more things about his personality. He is passionate for theater, mimicry, anchoring, and he started those things during his college duration as well. So he is having a total of, I can say, 500 plus hours of experience of delivering a trainings and trainings to the different levels, to the students, to the trainees in the organization, and of multiple domains. So I'm not going in more details, but I request a tool to start with the today's e-learning session. Hope you will enjoy the session and get the maximum benefit out of it. So thank you, Atul, for this session. I'll thanks you in advance. It could possible at the last I would not be available in the session because I have a meeting slated at 11:45. So Sure, I'll ma'am. leave the session in between. No So I problem. would like to thank you. Okay, thank you. Thank Yes, you so over to much. you. Yep, thank you so much, ma'am. So, good morning, everyone. Welcome to the session now. Regarding me, as ma'am told everything, but she did not tell one thing that I am today. I'm the place. It is only the blessings of my teachers only. Because in 2008, when I am passed out from MCA and joined my IT industry experience, so they are the one who is the back end for me. They teach me, they mentor me, they guide me, and they do each and everything which is possible to build my career, to my personality, and to build my experience as well. So like I'll start from Deepa ma'am, Aarti ma'am, Chandesh sir, Kailash sir, Vikas Daryal sir. So everyone who put each and every thought, every point in my mind, I took that part and grew in my life. And I only says that today I am at the place, the blessings of my teachers only, because no student can grow if the teachers did not bless them or did not guide them or teach them. So I'm not praising that I'm from the TMT and you should be contributing or you ask your friends to become to the TMT. This is my personal experience which I see, because those 3 years, 2005 to 2008, was the golden year for me. As ma'am told that, I'm not sure that how these crossings are coming on the screen now. I'm not doing anything at point of time. So as ma'am told that I'm passionate about theater, anchoring, and mimicry. So I just told you give you one example that I was the one who participate or who did the anchoring on my own talent show as well. The means on the first year talent show which has been organized in TIMT, I was the one who anchor in that particular program. So there's a lot of places, lot of chances you will definitely get into in your day-to-day routine life, so that you can be work like or you can be enjoy or you can be build your personality on the basis of your quality actually. Okay. Okay, so let's start the discussion of today's topic now. I'll say that please don't raise any hands because I'm getting the pop-up like this. Please avoid any ping, or if you're facing any issue, yes, please don't write anything on the screen. Don't ping anything on the chat window. We will open the session in the last for the all question answers. So in the meantime, please note down your question answer on your mobile phone or on your notebook so that we can discuss and I can able to answer your questions. Okay. So now you can see a picture on my screen now, old crow and modern crow. So why I put this picture, because in the earlier days, when we started the learning, we started our graduation or the post graduation, we need to go to the college and get the books from the library or study somewhere or ask some friends to give some material. Guys, please avoid writing anything on the screen, please.
Yes, I know Sidhu is there. Please, can you please remove this or don't write anything because this session is recorded already. Your name will be displayed on the videos. So avoid writing anything on the screen, guys. It's a humble request to everyone. Okay. So old crow said that if you need to be study something, you have to go to that particular place, do some hard, do something on that particular place, and then you can able to read something. But modern crows say that you have everything at your place. You have to just think about the use of that particular things. So this is the era of COVID-19. We are in the phase of the modern crow because now, even though you are not going to the college, but still you can study at your home. You have the mobile phones, you have the internet connection, you have a lot of facility over the internet. You can study any topic which is even not in your syllabus as well. Okay, so nowadays I'll make sure or we sing that we will be as a modern crow so that we till the time the situation will be normalized and we start going to the colleges or the college, we should be in this particular format only. Okay. Okay, so move to the next slide now. So in this particular discussion, in this particular 1.5 hour discussion, we will see three major points. Number one, guys, please avoid writing anything on the screen. PC, I know if someone is PC. Priyanka Chopra, definitely. So which tool and technology are we using currently in IT? So here we means you guys. So you can ask Atul, can you tell us that what are the technologies available into the market which we can learn and grow and build our career? So we will discuss this point. Second, we will see that if it means you guys join an organization, what are the expectations from me? See, whenever we hire someone in our team, we definitely have some expectations. We want to check some qualities, that is that guy or girl is a quick learner or know anything about the technologies or know how to do the problem solving stuff or what he or she can do. I want to be check that quality so that I can hire him or her and take it my team, and then I can polish him according to my needs and he can be a good asset for my company. So this is all about for me regarding I'm Atul Grover, working as a business analyst and ServiceNow solution architect. Okay, no more about my introduction. It's already given by the teacher, my Deepa ma'am. Okay, so these are the roles available into the market. So you can become a tester, you can become a developer, a functional consultant, a architect, a SME, support engineer, or quality. So in the coming technologies, we will see that on which role I am fitting or which role I can opt. But the thing is that to opt any kind of role, you need to start from the basics only. That is a one important point, guys. Okay. Okay. So now I'll see that at point of time in the industry, every service, everything as a service we are providing. So if I say that you are coming to college and getting education, so it is a education as a service they are giving to you. You are not bothered about anything about the TMT building, infrastructure, computer, labs, nothing. You just bother about the your education. Guys, I know you are making smiley, it's very good, but little more practice required. So better you can open your paint and then you can do the practice. Please avoid these kind of paintings on the screen. Okay, so what is the meaning of IaaS? That is infrastructure as a service. It means business offers services such as pay as you go and store or network or virtualization. So in short, if I say that if you go to the mall and you say, boss, I need only 10 minutes for the massaging things, so you can use that 10 minutes, pay for that, and you can come back. Even though it is a 1 hour plan, but you can still go and pay as much you use. And IS give you user cloud. Basically it is be the alternative to move from on premises to the cloud based. I'll show you the example that what is the meaning of IS in that particular stuff. Then the PaaS, platform as a service. It means when you get anything from the customer, from the vendor, and you need to just build your own things on that particular stuff.
on that particular environment, on that particular platform, or on that particular software, you're not again bothered about an infrastructure. Suppose I said, okay, I want to build an Android application, but for that I need a Android platform on my laptop or on my mobile phone. So I download that platform on my mobile phone from the website and start building my application on that. No English. Okay, no English. Okay, if you are okay, I'll not be going through the English now. I'll take the Hindi only. Okay, please avoid these words or the sentences, please. Okay, thanks. You can unmute yourself and you can speak as well if required. But now I got your point that it should okay. So now अब मुझे पता चल गया कि आपका कोई point नहीं है ऐसा कि मैं English में बात करूँ. So I'll be speak in Hindi, but I will definitely use in English somewhere as well. No, please, guys. It's a session, not a comedy show. Stand up is going on. Okay. So I'll continue with the English only. Please cooperate with me. So PaaS is basically when you get a platform and start building your application on that particular stuff. So I take example for the एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म. सो इसका मतलब ये दोस्तों, जैसे आपको कोई चीज बिल्ड करना है, आपको कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, उसके लिए आपको एक बेस चाहिए, आपको कोई ओएस चाहिए. सो एंड्रॉइड एक ओएस की तरह है जो हम मार्केट में से या वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम पर, और उसके बाद उसमें Ma'am, can you remove this guy? Sir, please remove this guy. I'm not able to see that who is this particular person actually. Otherwise, I will remove. Sir, we are also traveling that. Guys, if you want to continue this, I can be say that I'll stop this session now, and then, ma'am, we can filter out that who should attend this session. Sir, no, because of one we cannot stop, sir. Okay, please request to everyone, guys. I'm putting my time here, and you are also putting your time. So don't misuse the. Okay, thanks. I'll speak in Hindi, English. Definitely, I'll take the both things. Please cooperate with me in the meantime. ओके, सो पैस इज बेसिकली क्या है कि आपको कोई बेस चाहिए बिल्ड करने के लिए, उसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन, अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हैं. सो एंड्रॉइड एक ऐसा एक एप्लीकेशन हमारे पास है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप अपने सिस्टम पर डाउनलोड करते हैं और उसके बेस पर अपनी एप्लीकेशंस बनाते हैं. इसमें अगला टॉपिक अगला आता है हमारे पास SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. अब मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर, जैसे व्हाट्सएप है. We guys are using WhatsApp on the day-to-day basis. Every minute, every second, we're using the software. Are you actually bothered about the WhatsApp infrastructure, WhatsApp downtime? I'm sure no, because we are just using that software as a service. Even I cannot build anything on that, but मैं उसके ऊपर कुछ build नहीं कर सकता software WhatsApp के ऊपर. But हाँ, अगर मुझे WhatsApp जैसा कुछ बनाना है, then I will use PaaS. और अगर मुझे उसको स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए, then I will use IaaS. So in the next picture you will see that SaaS says you can consume. जैसे अब अभी I know this thing that in TIMT every student has his own email ID with the domain @timt.ac.in. I'm sure maybe this domain you are using, guys. Okay, so what they did, so Dr. Vikas Daryal purchased that particular domain and giving you as a user so that you can just use it as a software. Then PaaS. So now maybe दरियाल सर से नहीं यार, हम अपना टिम्ट का कुछ नया प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसके ऊपर ये नया ईमेल सर्विस बनाते हैं जो हम अपने लोगों को देंगे. सो दे से ओके, एक काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो सिस्टम है, जो माइक्रोसॉफ्ट का MS ऑफिस है, उसको लेते हैं और उसके ऊपर अपना कस्टमाइजेशन बिल्ड करते हैं, अपनी चीजें बिल्ड करते हैं उसके ऊपर या उसको एनहेंस करते हैं. Then IaaS is basically a clouding part, जहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई भी लेना देना नहीं है. दूसरी कंपनी, दूसरा वेंडर है जो आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करेगी, सब कुछ वही करके देगी. जैसे मान लीजिए हो सकता है TIMT का जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने वो किसी बिल्डर को दिया हो कि भाई अगर कुछ भी टूटेगा फूटेगा तेरी जिम्मेदारी है इसको ठीक करना. सो इट मींस दे आर जस्ट बॉदर अबाउट द बिल्डिंग यूसेज. लेकिन अगर कुछ भी इंफ्रा में खराब हुआ, पार्किंग नहीं मिल रही है, ये स्पेस कम हो गया, ऑडिटोरियम हमें चाहिए, क्लासरूम हमें चाहिए, सो दे जस्ट गो दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड से बॉस आई नीड दिस थिंग, प्लीज बिल्ड अप. और जितना वो बिल्ड करेगा उसके हिसाब से TMT will pay out to that particular person. So SaaS we consume, PaaS we build, and IaaS we are migrating nowadays. So another example for IaaS is basically on your mobile phone you have WhatsApp backup, on your mobile phone you have Google Drive. Can you tell me where that data is storing actually?
It is not on a mobile phone, not on a laptop, not on a desktop as well. It is on the cloud. Even you don't know that cloud में वो है कहाँ पर है, क्या मुझे maintain करना है, मुझे रोज उसका backup लेना है, मुझे उसको कैसे set करना है, नहीं, वो सब cloud जो भी cloud पर Google cloud पर जहाँ save हो रहा है, that is Google's responsibility and accountability कि उसको maintain करना उसका काम है. ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर. ओके, सो ये स्लाइड बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक था, वे next step for the IT or way for the IT basically, these are the new technologies. ये तो बहुत ही limited है guys, these are very limited which I pick up just to show you something, but इसके अलावा मार्केट में बहुत ही ज्यादा requirement. If I give you example, you will definitely surprise. Nowadays there is a lot of demand of the C++ developer. Can you imagine that C++ is still into the market and people are hiring for the 15 years, 20 years experience guy, they are hiring for C++. So these are the limited ones only. Okay, but I'll show you in the next coming slides, we will see that what are the important technology which you can learn in this period and can build your career and go into the market and get a job as well. Okay, so the first one is DevOps. DevOps is basically is a combination of the two words, development and operation. Development and operation. Guys, please avoid this painting, yaar. Please. I know it's very good picture and you can do the good drawing as well. So I'll recommend ma'am to be in maybe introduce some kind of a personality development sessions on the drawing as well, so that you can participate in that. Okay, so DevOps basically it's a combination of the two words, dev and ops. It means development and operation. So how the DevOps work basically, suppose I'll say, guys, I need to build a application, a software, simple, a normal application or a software I can say. So for that, you need to start the planning first. Okay, planning means that how I will build that particular application. Maybe you need to be think about the environment, you need to be think about the language, you need to think about the coding. Hello, Atul. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Excuse me, Atul. I think we should stop the session for now if they are not understanding the thing about it. I'm not interested for this session. I think without name, there are 2-3 users. Atul, you can remove them because I'm not able to remove those. Okay, ma'am. Without name, 2-3 persons are there. Okay, ma'am. You can see on the screen. I'll remove these guys. Google Meet This is 2HRT2H. Okay, two persons with the same name. Ma'am, one more 7832. 7832 F6 F8. Just remove these two. I'm removing. And they are creating very disturbance, ma'am. And lock the meeting. After that, nobody is allowed to enter. Oh, I need to see. Okay, I'm enabling the waiting room now, and okay, I'll lock the meeting now. Okay. Yes. Okay. Lock the meeting. We do not need anyone else. Thanks, ma'am. Thanks. I'm just using this first or second time only. Okay, guys. So I'm continuing now. Okay, no issues. And if somebody is doing it now, we have the names. So the session is recorded. Then we came to know it later as well, who is doing it. Sure, ma'am. I'll share the recording as well. Okay, fine. Thank you. Thanks, ma'am. So now the thing is that what is DevOps basically, guys? So DevOps said development and operation combination. It means if you are a developer, you have to do some steps. But when you go for the operation, it means when you are going to be use that, then you have to perform some operations like operate and the monitor as well. Okay. So how the DevOps basically look like, I'll show you in the next slide. Okay. So DevOps says that I am following a life cycle. Life cycle says basically that I'll start from the coding part. Coding, for the coding, you can use these three tools to store your data. Not data, basically you can use these three tools to store your code. And guys, these are not only limited tools. There's a lot of n number of tools for that people are using to store their code. Git, Jira, Confluence, Tortoise, Aspen Tortoise, ClearCase. These are the tools which are available in the market where you can use and store your code. Because let's take a normal example. If ma'am give you a topic for the seminar, definitely you people start storing your data somewhere. It means either you're storing on your laptop, desktop, or in some folder in your desktop, right? In the same way, you need some
repository to store your code, that is Git, Jira and Confluence. Build means when you are building that particular exe file. So let's take example that when you write a program in C, then you compile it by F9, I guess, right? You are building like a exe for that particular stuff. It means you are building that. And for the building in the DevOps, you can use the Maven, Ant, SBT. Again, these are the tools. And another point is that guys who are interested in very much in the coding and especially in the DevOps part, these are not the limited, these are the unlimited tools, and you can use any tool for your development perspective or the build perspective. Then test. Now the thing is that I have a lot of people in my class, and I cannot ask everyone to do the testing on for my tools. So what I did, I am using some tools which can be used for the automation of the testing. So that you can use SCJUnit, or the tool are used for the testing purpose. Then release, it means you are making a package of that particular code. So like I can say that you have you build the application which has the 5 modules: add employee, remove employee, add roll number, remove roll number, update address. So when you build this 5 in a single component, it become the release for me. And for the release, we use the Jenkins as a tool. This is very much good tool into the market, and many of the companies are using this Jenkins tool. Okay, then it go for the Atul, I'm interrupting again. sure, Please ma'am. remove one more. There is one I named Corona Danger Wait, ma'am, let me do because I do not want any disturbance further. Hmm. Is someone pass this information to other as well, that that there is a session has been organized? The session is only shared with the JMIT people through their director only, Okay. but no student from JMIT is there. It is Okay. only And our ma'am, students. just advise, next time you ask people to log in with their roll numbers only. That will be easy for you to And track. I can understand the names. Names also Sure. are known to me. If Okay. that is only one or two, those are not worked with that. Okay, ma'am. No worries. So I remove now. If you can just interrupt me if anyone else will there. Okay. Okay, now it's like all are the students. If somebody will do this, now they know that those who are the participants. Right. Okay. So let's continue. So Right, ma'am. can you erase that whatever is displaying onto the screen Let me as in host if possible. let me reshare it, ma'am, again. Reshare it definitely, so that if somebody will do it now, then they came to know that we came to know that somebody Yes. from Okay. the I'm student is doing. resharing now. So hope you are able to see my screen, right? Yes. Okay. Now it's perfectly fine. Yeah. Okay. Guys, please don't raise any hands here. Please. Question answers can be taken later on, and you can ping on the chat window if required. Okay, so ma'am will be taking care of the chat window later, side by side. Okay, so we are on the deployment part basically. Deployment is basically when you are making that application or the software available for the end users. For that, you need some place to store, right? To deploy. Like AWS is the one of the place where you can go, and on the cloud you can host your application and say, okay, now this is available for everyone into the world. Or you can use a Docker as well, and DS slash OS you can use. So these are the multiple tools available in the deployment. And finally, operate basically use to know that how my service is working, how my application is working. So operate and monitor I can combine together, where you can see that how much traffic is coming on on my application. Is a valid traffic, it's a non-valid traffic, it's a good traffic, it's a bad traffic, which traffic is taking a lot of time, from where I'm getting a lot of traffic, so that I can improve the performance for that particular site, and it is easy for my users to install or to use that particular application in a better manner. So in short, if I say DevOps is a one person who know the coding, who know the building, who know the deployment, and who know that how to monitor that particular stuff. So if I take the example of the TIMT, so Dr. Vikas Daryal, Dr. Deepa Nehra is like a DevOps resource.
so they know from the starting that how to start admission process and how to give a degree to a student. So they know each and everything, and in the meantime they monitor as well that okay, how many students are doing the well, how much students are not doing the well. Even though I'll take this example in the next technology as well, so remember my examples as well, guys. So these are the guys who know from in and out of an application, from the coding till the monitoring part, and again from monitoring it go for the planning again, that okay, what's went wrong in my application and how I can remove it. Then again coding, building, testing, and all this thing will be there. Okay, so next is very much important, very much interesting topic, and this topic is basically for those guys who are very much interested in mathematics, stats, and who are good in the language as well. Language here, I can say for the data science, you need to learn the R language. Guys, R. Normal R language is there, which is be helpful to learn the data science. But now the question is that maybe you can ask, I'll not open the session for you guys for, I'll taking the question on your behalf. अतुल, data science का मतलब क्या है? समझ तो आ गया, सिंपल दो वर्ड है. डाटा मतलब कि जो हम देखते हैं, जो हमें मिलता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन. साइंस मतलब उसके ऊपर कुछ तरीके से उसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन डालना, या उसके ऊपर कुछ एल्गोरिथम डालना, और जिससे हमें कुछ मिल सके. डेफिनेटली यही मतलब है डाटा साइंस का. ठीक है, इसको विल गो फॉर द डेफिनेशन देन, एंड आई शो यू द नेक्स्ट स्लाइड दैट हाउ इट वर्क एक्चुअली. Data science says the ability to take data, to be able to understand it, to process it, to extract the value. Again, value is very much important here. From it, to visualize it, to communicate it. That's going to be a hugely important skill in the next decades. Definitely, next decade has been started now, so it is very much important at point of time. अब मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल में इसका मतलब बताता हूँ. क्या ये पिक्चर बहुत अच्छी है. डोंट वरी, इफ यू नीड द स्लाइड्स एज वेल, आई कैन शेयर द स्लाइड्स विद मैम एंड यू कैन टेक इट. ठीक है, इसमें स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं हमारे. सो देखिए, सबसे पहले होता है डाटा एक्विजिशन. नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, उस नॉर्मल एग्जांपल में हम ये सारे स्टेप्स कवर करेंगे. एंड होप नाउ नोबडी हैज अ इशू कि सर हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें. आई एम डूइंग द मिक्सिंग पार्ट हियर. ओके, लेट्स टेक एग्जांपल. दीपा मैम गिव अ सेमिनार टॉपिक to X person. The topic name is how to improve your communication, or what are the benefits. Let's take a technical example, video conferencing. Okay, ma'am give a topic to X person, video conferencing, और that person seminar after the 2 weeks, उसका 2 हफ्ते के बाद सेमिनार है आप लोगों की क्लास में. ठीक है, now what that person will start, ये I'm not sure that how the going things are going at point of time, but जब मैं MCA में था, so हमारे पास सेमेस्टर के स्टार्टिंग में टॉपिक आते थे, भैया ये तुम्हारा टॉपिक है एंड इस दिन तुम्हारा सेमिनार होगा, and then you have to start working on that particular part. So what I'll do, that particular person will do, he will start searching on the video conferencing on the Google. वो सब इंफॉर्मेशन डाउनलोड करेगा. इट्स रेलिवेंट, जहां भी उसको वीडियो और कॉन्फ्रेंसिंग मिलेगा, ही विल स्टार्ट डाउनलोडिंग दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. इट इज मींस ही इज डूइंग द डाटा एक्विजिशन. वो मोबाइल फोन पे देखेगा, गूगल, यूट्यूब, from every source he will get the data. It is only data, guys. It can be relevant, it can be irrelevant as well. Okay, but that guy is starting that particular stuff. Now he put the data, he do the data preparation. It means he will start reading that particular downloaded data कि इसमें से मेरे मतलब का कौन सा है. Irrelevant, he start removing part. Maybe you downloaded 100 pages and out of 100 pages you come to the 50 pages now, that these 50 pages are for my purpose now. Okay, then data modeling. Now out of this 50 pages, what he will do, he will start putting that particular 50 pages into the different topics: introduction, type of video conferencing, benefit, disadvantage, process, data, system requirement. So वो अब क्या करेगा, वो 50 pages को इन sections में divide करना शुरू करेगा. It means he is doing the data modeling there. And finally जब उसको लगेगा कि हाँ पे set हो गया, then he start the deployment part. अब he will start copy pasting and preparing the final report कि भैया मुझे इसमें करना क्या है, कैसे रखना है मुझे इसके अंदर basically. And maintain, उसको मेंटेन करेगा, उसको हर रोज रीड करेगा. अच्छा, इसमें ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दो, लाइन चाहिए नहीं चाहिए, इसको हटा दो, ये पिक्चर यहाँ डाल के देखते हैं. देन फाइनली ही डू द विजुअलाइजेशन. When I am going to present this particular seminar to my colleagues or to my friends or the teachers, how it will visualize, are they able to understand it or not, are they able to get some data or not. So if I take another example here, that
when I prepare these slides, I go through these slides with my wife approximately 10 times and ask every time, अच्छा बताओ ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें जो लिखा तुम्हें पता चल रहा है कि क्या मतलब है इस पर्टिकुलर पिक्चर का, ये कैसे होना चाहिए. It means I am visualizing and again I am doing the data analysis कि भाई इसमें क्या गलत है, इसको क्या सही कर सकते हैं. So this is the basic example of the data science. But practical life में data science ऐसा नहीं है. I show you some examples on my screen here. Spotfy and Netflix. अब आप बोलेंगे सर डेटा साइंस कैसे यूज कर रहे हैं. ओके, maybe on the day one when you purchase the Netflix membership, you see some comedy show. Okay, after 1 hour or 2 hour, you will be seeing the more recommendation of the comedy show only. How? Because now Netflix get your interest कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में, शॉपिंग में है या तुम्हारा कॉमेडी में है या हॉरर में है या थ्रिलर में है या ड्रामा में है या रोमांस में है. सो उसने वो डेटा पीछे से कलेक्ट करके आपको वैसा रिकमेंडेशन देना शुरू किया. सो दिस इज वन एग्जांपल. अनदर Amazon. सिंपल. स्पेसिफिकली गर्ल्स जब वो शॉपिंग करते हैं, दे सॉ वन टाइप ऑफ टॉप और द ड्रेस, और उसके नीचे उसका डाटा ना शो होता है कि बाकी आपके जैसे बाकी यूजर्स ने ये वाले ड्रेसेस को भी परचेज किया. सो अगेन दे आर यूजिंग योर लाइक्स, डिसलाइक्स, योर ब्राउजिंग हिस्ट्री फॉर योर इंटरेस्ट. एयरप्लेन प्लानिंग. एयरप्लेन प्लानिंग कैसे बेसिकली यहाँ पे that nowadays what happened that once you book a ticket from Pune to Bombay, or maybe like when I book a ticket for Pune to Delhi, approximately even after my booking as well, I got every time for the offers कि पुणे से दिल्ली का इस दिन का ऑफर 2500 का, इस दिन का ऑफर 3000 का, इस दिन का ऑफर 5000 का. It means they are taking my things and they know that I am looking only for the cheap flights near about 3000 only, 4000 only, or the 5000 only, or sometimes I am looking for the business class. So they give me the option only for that only because they know that these are my likes and dislikes. And finally, gamings. Gamings basically are the online games. PUBG. I never played PUBG. I don't know that how to play PUBG as well. But I hear that when you clear one round, one level, you go to the next level. It means that is coming on your basis of the data sciences. They're collecting your online data and see, okay, now you clear this round. Let's go to the next round as well. So in short, it's look very easy. अरे sir, data science तो कुछ भी नहीं है तो मैं भी कर लूँगा. Definitely you can do, but to do that part, you should know that what is the data, how the data is important for you, and how you can build a data, or sorry, you can build a value from that particular data. If you want, I can give you a task. You can go and ask Deepa ma'am, हमें पिछले 5 साल का डेटा दीजिए MCA का. Start analyzing that data and come to the conclusion कि इसमें से ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं और जिनका हमेशा ये वाला सब्जेक्ट कमजोर रहता है. And then give the data to the ma'am, and then ma'am can start their extra classes or something, give more emphasis on that particular subject so that their particular subject can be improved. This is the example of the data science, because in this 5 years of data you need to do many stuff. उसका एज क्या है, वो रीअपीयरिंग तो नहीं कर रहा है, वो कौन से सेक्टर से, वो कौन से एरिया से आता है, उसका ट्रैवलिंग टाइम है, वो हॉस्टल में रहता है, वो घर में रहता है, उसका बैकग्राउंड कैसा है. सो आपके पास मल्टीपल फैक्टर्स हैं करने के लिए. देन यू कैन कम ऑन टू दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशंस so that next time when that particular guy is from that particular region, that particular person taking admission, ma'am can say that okay, this student is my radar, I need to give more emphasis on that particular student for the particular subject. So this is about the data science. Next is the RPA, robotic process automation. Very thumb rule guys, हर चीज को ऑटोमेट करने की जरूरत नहीं होती. कभी कभी हमें अपने प्रोसेसेस को सही करना होता है, चीजें अपने आप ऑटोमेट हो जाती है. Like maybe when I took admission, I came to from Kushetra to Yamunanagar approximately 3 to 4 times. पहले फॉर्म सबमिट करने आया, फिर फीस सबमिट करने आया, फिर क्लासेस का पता करने आया, क्योंकि कुछ ऑनलाइन नहीं था. अगर ऑनलाइन था तो इतना नहीं था कि मुझे पता हो या हमें पता हो बेसिकली. बट नाउअडेज व्हाट हैपन, ऑनलाइन टेस्ट होता है, वहीं से स्टूडेंट्स की डिटेल कॉलेज में चली जाती है, स्टूडेंट्स ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और सब कुछ हो जाता है. ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाती है, पेमेंट के बाद आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड द ऑटोमेशन. सो इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज द ऑटोमेशन इन स्मॉल? ऑटोमेशन इज अ टेक्नोलॉजी वेयर यू कैन ऑटोमेट द बिजनेस प्रोसेस. बिजनेस प्रोसेस मतलब ऐसा कोई काम जो दीपा मैम और विकास सर, दरियाल सर या आपके टीचर्स रोज करते हैं और वैसे ही पैटर्न में करते हैं. So you can make it as rule based, structured and repetitive.
अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका, बहुत मतलब फनी एग्जांपल है। सपोज स्टूडेंट्स को डर लगता है दीपा मैम आने वाले, मुझे पता चल जाए दीपा मैम आने तो मैं अपना फोन बंद कर दूंगा। सो मे बी यू कैन पुट समथिंग ऑन द गेट ऑफ योर TIMT कि जैसे ही दीपा मैम की गाड़ी एंटर होगी आपके पास पॉपअप आ जाएगा व्हाट्सएप पे कि दीपा मैम आ गए, चलो भाई क्लास लगने वाली, सब बंद कर दो। सो दैट इज बेसिकली रूल बेस्ड। आपको रूल सेट करने पड़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर सेट करना पड़ेगा कि मैडम अगर इसी गाड़ी से आएंगे तो ही ये चीज वर्क करेगा, किसी और गाड़ी से आएंगे तो वो चीज वर्क नहीं करेगी। एंड रेपिटेटिव, क्योंकि मैडम को रोज ऑफिस में आना है, रोज करना है, तो वो चीज। सो ए कंपनी कैन यूज RPA टूल टू कम्युनिकेट विद द डिजिटल सिस्टम्स। अब आज के टाइम में हम सिर्फ पेमेंट पे यस करते हैं, हाँ पेमेंट हो जाए, यस क्लिक किया, आपके पास ऑटोमेटिक मैसेज भी आता है, ईमेल भी आता है। कैसे आ रहा है? दैट इज ऑटोमेटिकली। जैसे ही वो ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में हिट करती है, मैसेज के दिस मच अमाउंट हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, ईमेल आ जाता है आपके पास। सो दे हैव द रूल बेस्ड स्ट्रक्चर कर दिया उसको रोज कि भाई कस्टमर को मैं फोन करके नहीं बताऊंगा हाँ सर पेमेंट हो गई, जैसे पहले होता था। पहले कैसा होता था, मान लीजिए मुझे बैंक से पैसे निकालने हैं या मैंने बैंक में कैश जमा करना है, चेक जमा करना है, फोन करके पूछा सर चेक जमा हो गया क्या मेरा, सर चेक जमा हो गया मेरा। अब क्या, चेक आपने रखा, मैसेज आता है कि योर चेक हैज बीन प्रोसेस्ड, यू विल गेट द मैसेज। सो दिस इज ऑटोमेटेड द पीपल डिड। सो ऑटोमेशन जो है यहाँ पर RPA का बहुत छोटे लेवल पर भी होता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लेवल हो, बट यस इसमें 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। रूल बेस्ड होना चाहिए, डेफिनेटली स्ट्रक्चर बेस्ड होना चाहिए, एंड रेपिटेटिव टास्क को आप कर सकते हैं। ओके, सो अब देखते हैं एग्जांपल्स कि यहाँ पर RPA कहाँ यूज होता है। नंबर 1, कॉल सेंटर ऑपरेशंस। अभी क्या है, मान लीजिए आपने कॉल किया अमेजोन पे, लेट्स से यू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम द अमेजोन और आपका वो प्रोडक्ट सही नहीं निकला, आपने अमेजोन पे कॉल किया। सबसे पहले अमेजोन पूछते हैं, या चलो कॉल पे, हाँ चलो कॉल पे चलते हैं पहले, फिर बाकी स्टफ पे आएंगे। आपने कॉल किया अमेजोन पे कॉल जाते हैं, बोलते हैं वेलकम टू अमेजोन, अगर आपका रिफंड का क्वेरी है तो 1 दबाएं, इसका है तो 2 दबाएं, इसका है तो 3 दबाएं। सो व्हाट इज दिस इज RPA। और समटाइम क्या होता है कि आप अपना रिफंड का ऑर्डर बिना किसी एग्जीक्यूटिव से बात किए पूरा कर देते हैं कॉल पे, दैट इज द RPA। या अगर मैं कहूं, बेसिकली अगर इसका सेकंड एग्जांपल देखें तो अमेजोन की आप ऐप पे जाइए, उसमें ऑप्शन आता है रिफंड का। रिफंड के ऊपर आप सब डिटेल डालते हैं, मेरा क्या प्रोडक्ट था, मैंने कब परचेज किया। इवन आफ्टर गेटिंग एवरीथिंग यू गेट अ नंबर एज वेल कि सर ये आपका ट्रैकिंग नंबर है, 4 दिन के बाद आपके पास एक एग्जीक्यूटिव आएगा जो आपका सामान पिकअप करेगा और आपको रिफंड का पैसा हो जाएगा। नो ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व इन दिस कंप्लीट प्रोसेस अदर देन पिकिंग अप योर फॉल्टी प्रोडक्ट। ऑनबोर्डिंग ऑफ एम्प्लॉय, पहले क्या होता था, अब जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं, अब पहले क्या था, जब हम आते थे कॉलेज में तो हम जाते थे, मैडम कहते थे अच्छा 2 दिन बाद आपकी लिस्ट लगेगी, आपका रोल नंबर होगा, आपका डिटेल्स होंगी। अब क्या है, जैसे स्टूडेंट एडमिशन लेता है, मैडम बैकएंड में बोलते हैं कि सर ये लिस्ट आ गई स्टूडेंट्स की, इन सबके आप रोल नंबर क्रिएट करवा दो, सर इनके एम्प्लॉय ईमेल आईडी क्रिएट करा दो, इनके क्लासेस, इनके बैचेस सब ईमेल आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट करा दो। इट मींस द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, कंप्लीट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इज इन ऑटोमेटेड नाउ। एक शीट बनाया, उसको एक जगह पर फिट किया, एक स्क्रिप्ट चला, उसने सारा कुछ आपके रोल नंबर बनाए, ईमेल आईडी बनाए, आपके बैचेस बनाए और आपको मैसेज भेज दिया कि भैया ये आपका, ताकि द डेट ऑफ द कॉलेज इज गोइंग टू बी ओपन, आपको पता हो कि आपको किस क्लास में जाके कहाँ बैठना है और कौन आपके क्लास टीचर है। सो एवरीथिंग हैज बीन डन ऑटोमेटिक। क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशंस लाइक योर सिबिल स्कोर्स, कंप्लीटली ऑटोमेटिक। आप सिर्फ अपना पैन कार्ड डालते हैं, अपना नाम डालते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, आपका पूरा जन्म पत्री निकल के आते हैं आपके क्रेडिट कार्ड का कि आपने कहाँ डिफॉल्ट किया, कहाँ डिफॉल्ट नहीं किया, ये सब ऑटोमेटिक है। प्लस लास्ट है पुलिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल वेबसाइट लाइक ट्रिवागो जो करके वेबसाइट है, वो क्या कहते हैं कि मल्टीपल साइट से मैं आपको क्लब करके लाके दूंगा, दैट इज ऑटोमेशन। लेकिन वो ऑटोमेशन आपको नहीं दिख रहा, वो बैकएंड में हो रहा है। जैसे ही आप लिखते हैं पूना से, या मान लीजिए आपने प्लान किया चलिए मैम हम ना टूर लेके चलते हैं शिमला का, शिमला में अच्छे होटल्स कौन से हैं, शिमला होटल से शिमला, एंटर पे क्लिक किया, आपको 15 ऑप्शन मिल जाते हैं अलग अलग साइट्स के। सो हाउ दिस कम फ्रॉम द ऑटोमेशन। बट आपको लगता है कि ऑटोमेशन हुआ ही नहीं, लेकिन बैकएंड में वो ऑटोमेशन ही है। बैकएंड में वो कहीं ना कहीं डेवऑप्स है, बैकएंड में कहीं ना कहीं वो IoT भी है। सो वी विल डिस्कस दिस टर्म्स इन द फ्यूचर एज वेल, इन द कमिंग स्लाइड्स एज वेल गाइस। नेक्स्ट इज द AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्लीज अगर कोई सो गया है तो प्लीज बोल दो सर नींद आ रही है, हम 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि घर पे बैठे हैं सब आराम से बेड पे लेटे होंगे। आई एम वेरी मच श्योर नाश्ता वाश्ता सबका हो गया। अगर नींद आ रही है तो प्लीज गाइज आई कैन ओपन द सेशन फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, कोई जवाब नहीं तो आपकी खामोशी को हम हाँ लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। सो AI क्या है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज में, कि भैया एक मशीन को इतना इंटेलिजेंट बना दो कि वो मेरा काम कर सके, सिंपल लेमैन लैंग्वेज। बेस्ट एग्जांपल सिरी।
जिसके पास भी आईफोन है वो आईफोन पे जो मिडिल बटन है उसको प्रेस करिए, एक आवाज आती है, वेलकम, हाय एलम, हेलो, आई एम सीरी, हाउ कैन आई हेल्प यू, गूगल असिस्टेंट, इको, अमेजोन का जो प्रोडक्ट है इको, these are the AI one, they can do everything for you, even though what the things they use, basically they're using speech recognition. Now what I do, I use the Google Assistant and say, please call to Dr. Deepa Nehra, and my mobile phone go and search for Deepa ma'am number and dial it. ऑटोमेशन, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरा मेरा मोबाइल फोन इतना स्मार्ट है, वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसको पता है कि दीपा मैम का नंबर मुझे कहाँ से ढूंढना है, कैसे ढूंढना है। वो पूछेगा भाई दीपा मैम का नंबर आपके पास नहीं है, मैं कहूंगा प्लीज सर्च फॉर डॉक्टर दीपा नेहरा, तब उसको पूरा नंबर मिल जाएगा। या मैंने कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उसको नंबर नहीं मिलेगा। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पर आपका स्पीच रिकॉग्निशन काम करता है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन काम करता है, और जिसके बेस पर आप अपने सारी चीजें यूज करते हैं। सो सिंपल एग्जांपल, जो रोबोट्स बने होते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द एआई। वो इतने स्मार्ट है, आप उनको रोबोट को बोलेंगे गो एंड प्लीज गेट अ वाटर फॉर मी, रोबोट जाएगा आपके लिए पानी लेकर आएगा। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एआई। बट टू लर्न द एआई यू शुड नो द मशीन्स, मशीन लर्निंग, कि मशीन के अंदर कोड कैसे किया जाता है। आई एम श्योर जो गाइज एमसीए फाइनल की है उन्होंने वीसी प्लस प्लस पढ़ा होगा डेफिनेटली। हमारे सर में विपिन, हमारे टाइम में विपिन सर थे जो वीसी प्लस प्लस पढ़ाते थे। एंड गुड अबाउट वीसी प्लस प्लस दैट यू विल कम टू नो कि मेरा कंप्यूटर कैसे काम करता है, मतलब कि एक कर्सर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए भी कोड लिखा जाता है। सो दैट इज अ मशीन लैंग्वेज। मशीन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मशीन कैसे ऑपरेट करेगा, कैसे काम करेगा। जो रजनीकांत का मूवी आया था रोबोट, दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ द एआई। वो कितना इंटेलिजेंट था, कितना समझदार था, वो हर काम करता था, बट people using it for the destructive purpose. So that is the thing for the AI. So you can get things on the Google or the YouTube, that how the AI can be used into day-to-day routines. Maybe you can put something, or you can write some code on your mobile phone and just say, please switch on the light of my home. Simple, AI is there because you're using a machine and you can using the थिंग्स। मे बी आपके घर में कोई छोटा बच्चा जिसके टॉयज हैं, जो बैटरी ऑपरेटेड टॉयज हैं या रिमोट ऑपरेटेड टॉयज हैं, यूज करो उसको एआई में कन्वर्ट करके देखो, you will get a new things guys. This is the best time for you to do this all this study. Okay, next is IoT. Very much interesting, मेरा best topic है ये IoT। जबकि I did not put much time on this, I'll put the most time on the bitcoins or the blockchain. IoT is basically, आज हम सभी इंटरनेट से कनेक्टेड है। आपके घर में एक छोटे से छोटा डिवाइस हो, आपका चाहे हेयर ये हो, आपका जो रहता है, आपका टीवीज हो, मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, या वो छोटी मशीन्स जो वाईफाई या इंटरनेट पे चल सकती है, दैट इज द आईओटी बेसिकली। सो इन आईओटी मेन थिंग इज दैट you are using two things, hardware and the software, because IoT will work on these two stuff. आपको पहले एक हार्डवेयर चाहिए जिसके ऊपर आप वो इम्प्लीमेंट करोगे, और उसको करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए या लैंग्वेज चाहिए। इसलिए आईओटी में आप देखेंगे आपके पास नेटवर्किंग भी आ रही है, आपके पास सेंसर भी आ रहे हैं, आपके पास क्लाउड भी आ रहा है, आपके पास बिग डाटा भी, आपके पास एआई भी आ रही है। इट मींस जितनी भी टेक्नोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अकेली टेक्नोलॉजी काम करती है मार्केट में, नहीं। इन द बैक एंड मल्टीपल स्टफ एक्चुअली वर्क। Okay, so IoT basically example, this is an example, a light bulb can be switched on or from the miles away using the mobile device. Very normal example. मैं आपको example देता हूँ इसका IoT का। मेरा जब रामायण आ रही थी तो मैं रात को रामायण देखना मुझे बहुत पसंद था, ठीक है। तो मेरे बेटे के पास रिमोट था क्योंकि उसको कार्टून देखना है, और लेकिन मुझे रामायण देखनी है। सो मैंने क्या किया, मैंने अपने एयरटेल का कनेक्ट जो रिमोट था उसको अपने फोन पे कनेक्ट कर दिया। अब वो जैसे वहां चैनल बदलता था, मैं यहाँ से उसको लॉक कर देता था। So it is an IoT because my phone and my TV both are on the same network and I can do anything in that particular stuff. So these things you can do. ऐसा नहीं है कोई ये रॉकेट साइंस है भाई। तुम तो बहुत एक्सपीरियंस हो, तुम तो बोल सकते हो हम नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं और सब हो भी सकता है। जस्ट नीड सम गाइडेंस एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड द गूगल सर्च और हो जाएगा, ठीक है। आईओटी में दो चीजें जो हमने डिस्कस की, आईओटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, आपको डिवाइसेस कंट्रोलर्स चाहिए नॉर्मल, ठीक है। और इसके लिए डाटा साइंस, डाटा इंटीग्रेशन, रियल टाइम, मतलब इसमें वही कि आपको लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए कि कैसे कोड किया जाए। हमारे क्लास में एक लड़का था मनोज लालर,
उसने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में, आई गेस फर्स्ट सेमेस्टर में सी में उसने स्कूडो कोड का जो था पूरा का पूरा इंटरफेस बना के दे दिया था, और मेरे जैसे लड़के को सी का प्रोग्राम भी लिखना नहीं आता था उस टाइम पे. सो पीपल आर डूइंग जस्ट द वे हाउ यू कैन डू इट. You need some guidance and people are here to guide you in that particular stuff. Okay, cloud computing similar to the backend. IoT ऐसा ही है क्योंकि इसमें स्टोरेज चाहिए बेसिकली. क्लाउड क्या है, जैसे हमने डिस्कस की कि आपका जो गूगल ड्राइव है, आपके जो जीमेल्स हैं, वो कहीं पर नहीं है, वो आपके सिस्टम पे नहीं है, आपके फोन पे नहीं है, दे ऑल आर ऑन द क्लाउड. आप कभी जीमेल ओपन करेगा, उसको स्क्रॉल डाउन करे एंड पे, वहां नीचे लिखा आता है 15 GB जो है गूगल आपको देता है, जीमेल आपको देता है, उसमें लिखा था कि इतना % आपने यूज कर लिया, इतना GB ऑफ इतना आपने यूज कर लिया. सो इन शॉर्ट, आज के टाइम में कोई भी कंपनी अपना इंफ्रा नहीं रखना चाहती. वो एवरीबडी वांट कि एवरीथिंग शुड बी ऑन द क्लाउड और उसको मेंटेन करने का जिम्मा मेरा ना हो. एंड Amazon is one of the vendor in that particular field. So Amazon Cloud, Amazon Web Services. So you can buy that Amazon Web Services to hold to deploy your applications. अब एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए TIMT ने अपना एक ऐप बनाया, ठीक है. अब वो ऐप कहीं तो वो इंस्टॉल करेंगे, कहीं तो होस्ट करेंगे. या तो क्या होगा कि एक सर्वर बनाएंगे, उसको अपने लैब में रखेंगे और वहां पर होस्ट करेंगे. अब सर्वर बनाएंगे, रखेंगे, इट इज बी कॉस्टिंग. उसको मेंटेन करो, उसको कूलिंग चाहिए, उसका टेम्परेचर चाहिए, उसकी रेगुलर मेंटेनेंस रिपेयर चाहिए. सो बेटर व्हाट द रियल सर से कि भैया काम करो, अमेजन वेब सर्विस अमेजन से कनेक्ट करो, उनको बोलो कि हमें इतना क्लाउड का एरिया चाहिए, हमारे इतने यूजर्स रहेंगे, एंड दे कैन help you for the same and host your application in that particular area. So Amazon is one of the service provider in the Amazon Web Services, and nowadays in the market AWS has a lot of demand, and people say that you need less coding if you want to go into the Amazon Web Service. You can be Amazon developer, practitioner, or architect as well. Even this is in my plan as well. I want to be learn AWS, and maybe if I come in person in TMT, I'll try to give a lecture on the AWS if I done that particular stuff. Okay, so Amazon can provide you compute services, storage services, content and network delivery services, database, deployment and messaging. So in short क्या हुआ, Amazon ने बोला भैया तुम हमें 400 रुपए दो, एक महीना यूज करो, 10,000 तुम्हारे यूजर्स इसको यूज कर सकते हैं एक टाइम में, बस बाकी सारा काम मेरा. उसको मेंटेन करना, उसको क्लीन करना, उसको रिपेयर करना, एवरीथिंग आई विल बी टेकिंग केयर. दरियाल सर says yes it is good. अगर मैं अपने TIMT में सर्वर लगाऊंगा, मुझे 5,000 लगाने के पड़ेंगे, उसके बाद उसके लिए बंदा रखना पड़ेगा, एवरीथिंग विल बी डन, और उसके बाद आई एम नॉट श्योर कि वो काम करेगा नहीं करेगा ढंग से, क्योंकि एक्सपर्टाइज चाहिए. सो एवरीथिंग इज गिवन बाय द Amazon now. Amazon say go and use things and pay as you want, as you use. Remember guys, 3 terms in the starting: IaaS, PaaS और SaaS. This is IaaS, infrastructure as a service. पैस भी है, ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. यूज करो मेरा प्लेटफॉर्म, बिल्ड करो अपनी एप्लीकेशन. और सैस भी है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. मेरा क्लाउड यूज करो, अगर जैसा चाहिए वैसा यूज करो और काम करते रहो. सो एवरीथिंग इज Amazon is giving to us. Okay, most interesting topic for me, because yesterday I revamped this complete topic, blockchain. Very interesting topic. Blockchain is basically, this term came into the picture जब Bitcoin was there. What is Bitcoin? Bitcoin is basically a digital currency. Normal currency means normal, जैसे हमारे नोट्स हैं, ये कॉइन्स हैं, वैसे ही डिजिटल करेंसी कि भाई दिखेगा कुछ नहीं लेकिन होगा सबके पास. So blockchain says, as you can see, blockchain block 1, block 2, block 3, block 4, block 5, block 6. इसको हम 5 मिनट लेंगे इसको डिस्कस करने में, क्योंकि इस पर थोड़ा सा मजा आएगा आपको सुनने में कि कैसे काम करता है ये, ठीक है. So blockchain can be defined as a chain of the blocks that contain the information. इसका मतलब हर ब्लॉक में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है. Guys don't confuse. मेरे पास इसका पूरा का पूरा सिनेरियो है कि कैसे काम करता है, ठीक है. The technique is intent to timestamp digital documents. इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने दीपा मैम को 500 रुपए भेजने हैं और मैंने वो ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर दिया, ठीक है. तो क्या होगा, जैसे ही वो ट्रांजेक्शन इनिशिएट होगा ना, उसके साथ एक टाइम स्टैम्प लग जाएगा, 10:35:00 सेकंड AM 11th May 2020 ऐसे करके, ताकि अगर कोई उसको ब्रेक भी करना चाहे तो ब्रेक ना कर सके. उसका ऐसा टाइम स्टैम्प लग जाता है, मिली सेकंड तक का लग जाता है. ओके, नॉट पॉसिबल फॉर द बैकडेटेड डैम टू टेम्पर इट. द पर्पस ऑफ ब्लॉकचेन इज टू सॉल्व द डबल रिकॉर्ड. क्या होता है, अरे मैंने तो पैसे भेजे थे यार, किसी और के अकाउंट में चले गए पैसे, ये हैक हो गया मेरा अकाउंट, क्योंकि जब हमने ट्रांसफर किया पैसा वो इतना सिक्योर नहीं था और किसी ने उसको हैक कर लिया. मुझे तो दिख रहा है कि हाँ हो रहा है,
लेकिन वो किसी और के अकाउंट में चला गया. सो दैट इज द पर्पस ब्लॉकचेन कम इनटू द पिक्चर, बिटकॉइन कम इनटू द पिक्चर. ओके, थोड़ी सी थ्योरी है बट डिस्कस करने में मजा आएगा. अब ब्लॉकचेन इज अ चेन ऑफ ब्लॉक्स फॉर डाटा व्हिच इज स्टोर्ड इनसाइड द ब्लॉक्स डिपेंड्स, सॉरी, ओके, okay, इसको थोड़ा, okay, blocks, for example a bitcoin block contain information about sender, receiver, number of bitcoins to be transferred. मुझे अतुल ग्रोवर ने दीपा मैम को 500 रुपए भेजने हैं. सेंडर अतुल ग्रोवर, रिसीवर दीपा मैम, नंबर ऑफ बिटकॉइंस 500. ये ट्रांसफर करने नॉर्मल एग्जांपल है, ठीक है. अब इसमें तीन चीजें काम करते हैं. नंबर 1, ब्लॉक स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन लाइक डेट, टाइम, डॉलर अमाउंट, कि कितना मुझे भेजना है, ठीक है. मान लीजिए मैंने XYZ से कुछ परचेज किया. ब्लॉक स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हु इज पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रांजैक्शन, मतलब कि कौन से गेटवे से आप पास कर रहे हो, कहां पर उसका करेंसी चेंज होगा, कौन सी कंपनी में आप जाके पैसा सबमिट कर रहे हो, उसका कौन सा अकाउंट नंबर होगा, वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर स्टोर रहता है. सो ब्लॉक फॉर योर सरप्लस परचेज फ्रॉम XYZ वुड रिकॉर्ड योर नेम अलोंग विद योर कंपनी नेम. बट ये क्या करता है कि आपका एक्चुअल नाम यूज नहीं करता, ये आपका सम other name यूज करता है. Instead of using your actual name, your purchase recorded without any identifying. अब इसे ये नहीं पता, मतलब कि क्लाउड में ये नहीं पता कि अतुल ग्रोवर ने दीपा मैम को कुछ भेजा है. ये पता है कि किसी ने किसी को कुछ भेजा है, ये नहीं पता किसने भेजा है, ठीक है. ब्लॉक स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रॉम अदर ब्लॉक, अबाउट द अदर ब्लॉक्स एज वेल. और इसमें मेन फंडा क्या यूज करता है, हमारे टाइम में थे डॉक्टर, एक सरदार जी थे हमारे साथ. मैम आपको याद है कि सरदार जो DMS पढ़ाते थे, मैं नाम भूल गया उनका, डॉक्टर सरदार जी थे हमारे साथ जो हमें DMS पढ़ाते थे बेसिकली, और डॉक्टर सचिन हमें आती मैम पढ़ाते थे. तो वहां पर हम हैश फंक्शन यूज करते थे. ये डॉक्टर सचिन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर हैश फंक्शन यूज करते थे हम, या हैश कंसेप्ट यूज करते थे. वो हैश बेसिकली क्या करता है कि एक रैंडम, सुखविंदर सर, सुखविंदर सर, हाँ, जो हमें DMS पढ़ाते थे, और आरती में हमें डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाते थे. सो दोनों, बिकॉज दोनों का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डाटा स्ट्रक्चर का मिक्स करके यहाँ पर कुछ यूज हो रहा है बेसिकली. सो वो हैश फंक्शन क्या था, हैश फंक्शन बेसिकली क्या है कि एक रैंडम नंबर जनरेट होता है, नंबर भी नहीं कहूंगा, रैंडम रिकॉर्ड जनरेट होता है, जिसमें डिजिट्स भी होते हैं और अल्फाबेट्स भी होते हैं, और वो चेंज करना बहुत मुश्किल होता है. हर ब्लॉक का अपना एक नंबर होता है. अगर मैं यहाँ बोलूं तो इस जो ब्लॉक आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका अपना हैश नंबर है, इसका अपना हैश है, इसका अपना हैश है, अपना हैश है, इसका अपना हैश है, इसका अपना हैश है. सो ये हैशेस अप्रोक्सीमेट 32 to 40 डिजिट्स, जहां तक मुझे याद है, इतने बड़े होते हैं ये, और ये हर 10 मिनट के बाद चेंज होते रहते हैं. इसमें क्या होता है, आपका इसका जो हैश है उसमें इसका हैश का भी कुछ ना कुछ हिस्सा जुड़ा होता है, जिसकी वजह से इसको ब्रेक करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है हमें, ठीक है. सो हैशेस आर क्रिप्टोग्राफिक कोड क्रिएटेड बाय द स्पेशल एल्गोरिथम. बट गाइस, ऐसा नहीं है कि सर हैश बना दे तो सब कुछ होगा, एल्गोरिथम लिखना पड़ता है. सो अब इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं. ओके, ऊपर 6 पॉइंट्स हैं, नीचे भी 5 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, 4 से 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे. नंबर 1, ट्रांजैक्शन मस्ट बी अगर आपको देखना है कि बिटकॉइन कैसे काम करता है, तो आपको एक ट्रांसफर इनिशिएट करना पड़ेगा, ठीक है. द ट्रांजैक्शन मस्ट बी वेरीफाइड. कैसे? आफ्टर मेकिंग दैट पर्टिकुलर परचेज योर ट्रांजैक्शन मस्ट बी वेरीफाइड विद अदर पब्लिक रिकॉर्ड्स. जैसे सिक्योरिटी, मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे अमेरिका में से $500 दीपा मैम को इंडिया में भेजने हैं, तो वो क्या होगा, जो ब्लॉक्स, जो अलग अलग ब्लॉक्स बनेंगे, वो एक ब्लॉक जाएगा सिक्योरिटी यहाँ पे एक्सचेंज में. वो देखेगा, अच्छा भाई, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज अतुल ने बोला है ट्रांसफर करने के लिए, क्या ये वही सिक्योरिटी ब्लॉक है, क्योंकि उसका भी अपना हैश होगा. तो वो सिक्योरिटी एक्सचेंज का हैश और मेरा एक्सचेंज मैच करेगा, तो ही वो आगे बढ़ेगा. इट मींस दैट इज वेरीफाइंग. देन जब वो दीपा मैम के अकाउंट में पहुंचेगा, पहुंचने से पहले इंडिया में पहुंचेगा, तो देखेगा इंडिया में गेटवे कौन सा है, वो गेटवे जो मैडम जो मैंने फिक्स किया हुआ अपने एल्गोरिथम में, वो और जो गेटवे जहां पर मेरे को जाना है, वो दोनों हैश मैच करेगा, और तब वो वेरीफाई करेगा. उसके बाद ही दीपा मैम के अकाउंट में वो ट्रांसफर करेगा. सो दे कंफर्म द डिटेल्स ऑफ द परचेज इंक्लूडिंग द ट्रांजैक्शन टाइम, डॉलर अमाउंट एंड द पार्टिसिपेंट. भाई किसके अकाउंट में से किसको कितना जा रहा है, कब इनिशिएट किया गया, सारी इंफॉर्मेशन. द ट्रांजैक्शन मस्ट बी स्टोर्ड इन अ ब्लॉक. सो जितना भी काम आपको लग रहा है, ये कहेंगे सर ये तो बहुत सारा काम है, नहीं, ये सेकंड्स में काम होता है. सेकंड्स में मैंने ओके पे क्लिक किया, दीपा मैम को 500 रुपए भेजने हैं, और 500 रुपए मैडम के अकाउंट में पहुंच गए, लेकिन जो पीछे हुआ ट्रांजेक्शन वो कुछ सेकंड्स में था, लेकिन हुआ कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन से, ठीक है. सो द ट्रांजेक्शन मस्ट बी स्टोर्ड इनटू ब्लॉक. अब क्या हुआ, उसने अलग अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर करना किया. भाई सेंडर का एक ब्लॉक बनाओ,
रिसीवर का एक ब्लॉक बनाओ, अमाउंट का एक ब्लॉक बनाओ, सिक्योरिटीज का एक ब्लॉक बनाओ, इन्फॉर्मेशन का एक ब्लॉक बनाओ, सारा। एंड द डॉलर्स एंड उसमें क्या क्या आफ्टर यू ट्रांजेक्शन हैज बीन वेरीफाइड एज एक्यूरेट इट गेट्स ग्रीन लाइट। तो मतलब कि इसका मतलब मेरा हैश और जो सिक्योरिटी एक्सचेंज का हैश था मैच हो गया, इसका मतलब यस दिस इज द ब्लॉक हैज बीन डन। अब वो ब्लॉक एक्चुअली में जाके चेन में जुड़ जाएगा, और जब सारे ब्लॉक ऐसे जुड़ जाते हैं तब वो पूरा का पूरा चेन बन जाता है मेरा, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है यहाँ पर, when the new block added to the blockchain it become public। जैसे ही वो क्या होता है भाई, जो पूरा ट्रांजेक्शन खत्म हुआ, मेरा एक ब्लॉक पूरा बन गया और वो चेन पूरा बन गया, तब वो आपको अवेलेबल होता है, आपको ट्रांजेक्शन दिख जाता है, यस दिस मच अमाउंट हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड हैज बीन क्रेडिटेड टू योर बेनिफिशियरी अकाउंट। इसका मतलब वो ब्लॉक पूरा होकर आप देख सकते हैं हाँ भाई मेरा पैसा आराम से उनके अकाउंट में पहुंच गया। सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ द ब्लॉकचेन। जो हमने यहाँ 6 पॉइंट देखे, ये पूरे के पूरे 6 पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस करे। So guys, it look easy, but I am sure coming few years में हमारे जो करेंसी है, जो नोट है या जो हमारे कॉइन्स हैं, ये वैलिड नहीं रहेंगे। Everybody will go on the blockchain, everybody go on the digital currency कि भाई 500 रुपए है उसको डिजिटल बना दो, 500 रुपए ट्रांसफर कर दो। So this is a new concept which you can learn. Okay. एक मिनट लग, ओके ओके। नेक्स्ट इज अजाइल, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। सो इसके बाद आप थोड़ा सा ब्रीथ ले सकते हैं, यू कैन ओपन फॉर द क्वेश्चंस एज वेल। सो अजाइल बेसिकली नॉन टेक्निकल पार्ट है, बट अजाइल इज अ वे टू डू द वर्क, कि आपको काम कैसे करना है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और सॉरी तो कितना अच्छा पिक्चर लग रहा है, मजा आ गया देख के इसको। ये पढ़ने में भी उतना ही इंटरेस्टिंग है सच में। अजाइल का मैं आपको मोटा मोटा फंडा बताता हूँ, अजाइल काम कैसे करता है। अजाइल कहता है कि मान लीजिए मान लीजिए दीपा मैम ने बोला कि भाई एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके दो, जिसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अपडेट रहेगा जब वो कॉलेज छोड़ के जाएंगे, और 2 साल तक वो रिकॉर्ड अपडेट करते रहेंगे हम, ठीक है। अब उसमें आपको 10 मॉड्यूल बनाने हैं। तो 10 मॉड्यूल बनाने का मतलब ये नहीं कि 10 के 10 मॉड्यूल एक साथ शुरू करोगे, नहीं। पहले आप दीपा मैम से पूछोगे, मैम ये बताओ आपके लिए सबसे पहले टॉप पे कौन कौन से मॉड्यूल है, टॉप 3 मॉड्यूल्स बताओ। मैम कहेंगे पहले लॉगिन पेज होना चाहिए, उसके बाद ऐड एम्प्लॉय होना चाहिए, सॉरी ऐड स्टूडेंट होना चाहिए, और तीसरा व्यू स्टूडेंट होना चाहिए। सो आपने क्या किया, उसको यूजर स्टोरी बना दिया। ये यूजर स्टोरी होती है जब हम अपने रिक्वायरमेंट्स को छोटा छोटा बना देते हैं। इवन दो जो मैडम ने बोला लॉगिन स्क्रीन होना चाहिए, उसको भी आगे डिवाइड करो। लॉगिन स्क्रीन में एक फ्रंट एंड होगा, होम पेज होगा, उसमें यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, फॉरगेट पासवर्ड होगा, न्यू रजिस्टर होगा। ये सब भी छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स है। सो इसको आपने यूजर स्टोरी में बना दिया। सो जब आपने ये पूरे 3 रिक्वायरमेंट पूरी करी, आपने बोला मैडम बन गया ये, इसका मतलब दिस इज कॉल्ड ए मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कि अगर आप इसको यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। फिर आपने मैडम को प्रेजेंट किया, मैडम ने बोला अच्छा चलो इसकी इसको दिखाओ कैसा चल रहा है, दिखाओ। आपने मैडम को प्रेजेंट किया, मैडम ने बोला भाई फ्रंट एंड थोड़ा चेंज करो, ये नहीं चल रहा, एडिट नहीं चल रहा, व्यू नहीं चल रहा ढंग से, इसमें टेबल्स खराब आ रही हैं, इसमें रिकॉर्ड्स नहीं सेट हो रहे। तो ये सब मैडम ने आपको फीडबैक दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारी ये होती है, ये रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग बेसिकली जो हम कहते हैं यहाँ पर, ये स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग यहाँ पर ये होती है, आप चेक करते हैं अगेन एंड अगेन। सो जब मैडम बोलती है हाँ अब ठीक है, तो आपने बोला मैडम ये साइन ऑफ दो, हम अब अगली 3 रिक्वायरमेंट्स आपको उठाकर देते हैं, उस पर काम करते हैं। सो ऐसे अजाइल मैथोलॉजी काम करती है प्रैक्टिकली। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस, बिलीव मी, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करती है आपके कि आपको कैसे काम करवाना है। ठीक है जी। बहुत मैंने तो बहुत लिमिटेड टर्म्स पिकअप किए यहाँ पर, आई जस्ट पिकअप द वेरी लिमिटेड टर्म्स, बट इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है पढ़ने के लिए। ओके, नाउ द क्वेश्चन कि अतुल भाई आपने यू टोल्ड अस अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत ज्यादा हो गए, तो अब ये बताओ पढ़े कहाँ से। दीपा मैम कहते हैं कॉलेज नहीं आना, लाइब्रेरी बंद है, दरिया सर कहते हैं कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट कहते हैं कॉलेज नहीं है, हम पढ़े कहाँ से। सो गाइज एज पर माय एक्सपीरियंस देयर आर 2 वेबसाइट्स, स्वयं एंड कोर्सेरा। स्वयं इज अ इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट जहां पर आपको अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉलेजेस के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर्स के लेक्चर्स मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जैसे आईओटी है, और ये आप आईओटी हो गया, मशीन, कोई भी टॉपिक आप इवन आप उठा लो, सी प्लस प्लस उठा लो वो भी मिल जाएगा आपको, डाटाबेस उठा लो वो भी मिल जाएगा आपको, डीएमएस उठा लो वो भी मिल जाएगा आपको, हर चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। Coursera is not a free, it's a American maintained website जहां पर आपको अमेरिकन कॉलेजेस के लेक्चरर्स के लेक्चर मिलेंगे।
ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट मैं आपको और हाईलाइट करता हूँ यहाँ पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। अभी क्वेश्चन क्या आता है कि अतुल, आपने बोला एआई सीख लो या आईओटी सीख लो या रोबोटिक्स सीख लो या आरपीएस सीख लो, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं चीज सीखूं तो मेरे लिए बेस्ट रोल कौन सा है, मैं किस रोल के लिए अप्लाई करूं या कौन सा रोल सीखूं मैं डेवलपर बनूं या एडमिन बनूं या आर्किटेक्ट बनूं या प्रैक्टिशनर बनूं। तो इसके लिए जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मैंने गूगल्स पे 2-3 वेबसाइट्स देखी। अब देखिए नौकरी पे अगर आप देखेंगे, आप डालिए एमसीए, तो जैसे ही आप एमसीए डालेंगे तो आपको बहुत सारे रोल दिखाता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये बन जाओ, वो बन सकते हो, ये वाला वो वाला, लेकिन मुझे फिर भी क्लैरिटी नहीं मिलती। सो मेरे बेस्ट एक्सपीरियंस से आई फाउंड वन वेबसाइट दैट इज नेम इज अ थिंकसर्टी, THINKCERTI, thinkcerti.com, आई गेस ऐसी .com या .co.in ऐसी कुछ है वो। उसके ऊपर जाके मैंने देखा तो मुझे मिला कि हाँ भाई, उसमें कौन कौन से कोर्स, किस कोर्स की तरह से कौन सा रोल मेरे लिए एप्लीकेबल हो सकता है। सो दिस इज टोटली ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग हियर गाइस, माय पर्सनल एक्सपीरियंस टू नो कि भाई मुझे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है तो कौन कौन से रोल अवेलेबल है एआई के अंदर, सो दैट आई कैन पिक अप वन रोल एंड कैन ग्रो माय करियर। ठीक है, सो नाउ आई विल ओपन दिस सेशन फॉर यू गाइस, but before that my last slide will be there. Sometimes everything goes very smoothly into our life. कोविड से पहले, कोरोना से पहले सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। अचानक कोरोना आया, सब कुछ टूट गया, घर में बंद हो गए, कॉलेज नहीं जाना, ऑफिस नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। बट everybody get this problem and convert into the opportunities. आपकी मैनेजमेंट ने, इंस्टीट्यूट्स ने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ने, सबने क्या किया, इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करके अपॉर्चुनिटी बनाया। हम बच्चों को क्यों घर बैठने पे विश करें, क्यों बोले कि भाई तुम घर बैठे रहो, कुछ मत पढ़ो, लेट्स स्टार्ट सम सेशन। सो ये वो अपॉर्चुनिटी है जो आपकी मैनेजमेंट ने, जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला भाई। अब मैं पुणे से यमुनानगर नहीं जा सकता ट्रैवल करके इजीली, मुझे प्लान करना पड़ता है, 2 महीने 3 महीने पहले प्लान करना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है दीपा मैम से कि मैम कब हो सकता है लेक्चर। बट इसमें 2 दिन में मैंने मैम से पूछा, मैम मुझे सेशन लेना है, मैडम ने बोला आपका स्लॉट बताओ, हम अरेंज करते हैं आपका सेशन। सो ये चीजें हमने अपॉर्चुनिटी बदला। सो प्लीज ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कोविड-19 की वजह से कुछ बहुत इम्पैक्ट होगा। डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ है, इम्पैक्ट हो भी रहा है और इम्पैक्ट अब दिखेगा अभी। बट the thing is that be positive in this manner and convert these problems, convert this covid problem into the opportunities. जितनी भी टेक्नोलॉजीज आपने भी सीखी हैं, देखी हैं, उनको कन्वर्ट करो, प्रैक्टिकली करो यार। कॉलेज में ऐसा हाल बना दो कि मैडम को कुछ मैनुअल काम करना ही ना पड़े, मैडम करे अरे कुछ तो करने दो मुझे। ऐसी चीजें प्रैक्टिकली करके देखो। आईओटी है, एआई है, आरपी है, सीखो और करो, सीखो और करो, सीखो और करो, सब चीज करो ऐसा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मल एग्जांपल। हमारे क्लास में एक लड़का था ब्रिजेश शर्मा, रोल नंबर 19। हम लैब्स 3 लैब्स थी तो मेरी लैब में बैठता था वो। उसने अपने लैपटॉप, अपने सिस्टम से जो हब रूम था, जो लैब का हब रूम है, वहां पर प्रिंट आउट्स की कमांड चला दी और इतना बुरा हाल हो गया कि नंबर ऑफ प्रिंट आउट्स निकलने शुरू हो गए। कैसे? क्योंकि वो नेटवर्क का स्टूडेंट था, उसने अपनी नेटवर्किंग स्किल यूज करी, उसने कहीं से वो हब का आईपी निकाला और उस पर कमांड डाल दी। सो दीज गाइज डू दिस प्रैक्टिकल एट योर एंड, अपने फोन पे, अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिकल करके देखो, अपने फोन व्हाट्सएप से अपने घर की लाइट्स ऑन करके देखो। और ऐसा होता है, लिंक्डइन पे जाके चेक करो, ऐसा होता है। और प्लीज एक चीज और, मुझे लिंक्डइन से याद आ गया, आप में से जो भी लोग लिंक्डइन पे नहीं है, प्लीज मेक योर प्रोफाइल ऑन द लिंक्डइन। समुंदर है सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए। And now I'll stop myself. You can connect me on the WhatsApp. This is my WhatsApp number. You can connect me on the LinkedIn and you can connect me on the YouTube as well, because ये जो अभी हमारा डिस्कशन हुआ, सेशन हुआ, ये मैं वीडियोस मैडम को भेजूंगा, so that you will get the videos on the YouTube as well. मैडम को ओरिजिनल भी जाएगा प्रॉपर, और ये पूरा ओरिजिनल ही रहेगा, सिंगल कॉपी भी जाएगा और यूट्यूब के लिंक्स भी जाएंगे, so that you guys, if you want to learn something again, you want to listen something again, you can connect. Plus on the YouTube, मैं अपने, जो मेरा मोटिव है कि मेरे जो ज्ञान अब तक लिया, जैसा मैंने मैडम को पहले ही बोला कि जहां पर आज मैं हूँ वो इन्हीं के आशीर्वाद से हूँ, इन्हीं की गाइडेंस से, इनके मेंटरशिप से हूँ। सो मेरा टाइम है कि मुझे सब चीज वापस देनी है। ठीक है, सो आई एम प्रिपेयरिंग वीडियोस फॉर द मल्टीपल कोर्सेज। ITL है, सर्विस नाउ है, फुल फॉर्म है, पावर पॉइंट है, ये सब वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी। आप आराम से जाइए, देखिए, आराम से जितना सीख सकते हैं सीखिए। अगर कोई फीडबैक है, मुझे कनेक्ट करिए व्हाट्सएप पे और लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है, सो आई विल स्टॉप माई सेल्फ हियर नाउ एंड आई विल ओपन फॉर द चैट नाउ।
Let me open the chat. Okay, I'm okay. मैंने stop के screen sharing मैम, और I'll just paste it one thing here. Okay, so anyone has any question, please you can ask. I am sharing my screen again so that इसी screen पर हम discuss करते रहें. Over to you guys. किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई हो तो पूछ सकता है आराम से. सर मैम जो भी कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं आराम से. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क. अरे विष्णु थैंक यू तो हो जाएगा. एनी क्वेश्चन? हेलो, गुड मॉर्निंग सर. जी बताइए सर. सर मेरा नाम अतुल है. सो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा था ब्लॉकचेन होते हैं, उसमें हैश का यूज होता है, मतलब एक कोड मिलता है या नंबर राइट मशीन लैंग्वेज में. राइट. तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो डेटा होता है वो हैक हो जाता है, तो इसका उससे रिलेशन है कुछ मतलब? नहीं, एक्चुअली ब्लॉकचेन में जो मैंने अपना पढ़ा है ना अभी तक वेबसाइट्स के ऊपर, उसमें ये लिखा गया है कि ब्लॉकचेन को हैक करना मुश्किल है एज ऑफ नाउ, क्योंकि ब्लॉकचेन में हैश यूज होता है. और हैश कैसे काम करता है कि वो आपका पिछला ब्लॉक का और जो ब्लॉक पे आप काम कर रहे हैं उन दोनों को मिक्स करके वो हैश बनाता है. सो इसको ब्रेक करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है अभी तक, जो मैंने वेबसाइट्स पे पढ़ा है एज पर माय एक्सपीरियंस. मतलब मैंने प्रैक्टिकल करके नहीं देखा, बट यस इट इज हार्ड टू encrypt or hard to break in between somewhere. ओके. ठीक है. ओके, हाउ टू स्टार्ट लर्निंग डेवऑप्स. ओके मेहुल, डेवऑप्स देखो, अगर आपको डेवऑप्स का देखना है तो मेनली आई कैन से स्टार्ट रीडिंग समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ द डेवऑप्स. आप कोर्सेरा पे स्वयं पे जाओ या यूट्यूब पे जाओ, डेवऑप्स आपको मिलेगा, क्योंकि डेवऑप्स में मल्टीपल चीजें हैं यार. मल्टीपल जैसे आपको कोडिंग करनी है तो कोडिंग के लिए आपको एक रिपोजिटरी चाहिए जहां स्टोर कर सके, जैसे गिट है, एसवीएन है. ये सब अलग अलग टूल है. आपको इन टूल्स को पढ़ना पड़ेगा, इन टूल्स को समझना पड़ेगा. देन यू कैन सी कि डेवऑप्स कैसे काम करता है. जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पर, अगर मैं लेके चलूँ आपको सबसे ऊपर वाली स्लाइड्स पे. ओके, ये वाला जो पिक्चर मैंने दिखाया है, तो ये जितने भी सेक्शंस आप देख रहे हैं पूरा डेवऑप्स का लाइफ साइकिल है. चली गई गाइस, आई गेस लाइट चली गई है. हेलो. Okay, what background is necessary in order to start AI and ML? नहीं यार, Karan, tough to answer this question कि क्या background चाहिए, but background is only this thing that your coding should be strong actually, and you should have a ability to understand the machines. इसलिए मैंने बोला जो Think30 साइट मैंने आपको पिंग किया था, आई गेस think30.com, इस पर एक बार जाके चेक करेगा कि कौन कौन से रोल्स अवेलेबल है जो आप सीख सकते हैं, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू नो कि भाई अगर मुझे एआई या मशीन लर्निंग सीखना है तो मेरे लिए बेसिक रोल कौन सा, उसको कैसे स्टार्ट कर सकता हूं मैं. तो ये चीजें हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. हेलो, sorry guys, there's some problem of this current at my home. So can you hear me guys? Yes sir. Okay, sorry लाइट चली गई थी यार. Okay, तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन. सर मैंने आपसे क्वेश्चन पहले ही पूछा था लिंक्डइन पे, सर डाटा साइंस स्टार्ट कहाँ से करें सर? डाटा साइंस स्टार्ट करो बेसिक से. सी इवन आई थिंक अबाउट द डाटा साइंस की डाटा साइंस क्या है और कैसे
स्टार्ट कर सकते हैं. सो डाटा साइंस के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है यार आपको डाटा को एनालाइज करना आना चाहिए. और स्टार्ट करने का ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करें. द वन थिंग ओनली कैन बी स्टार्ट रीडिंग द वेबसाइट्स कि डाटा साइंस क्या है, कैसे काम करता है. इससे एग्जांपल्स पढ़ो पहले कि कहाँ कहाँ पर यूज होता है. देन यू कैन स्टार्ट मे बी ऑन द कोर्स और स्वयं यू कैन गेट इट द डाउनलोड द कोर्स कंटेंट कि क्या क्या है डाटा साइंस के अंदर, और वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो. बेसिक से ही है यार, क्योंकि डाटा साइंस में मेनली क्या है कि आपका आर लैंग्वेज यूज होता है, आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है उसमें अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. सो वहां से आप डाटा साइंस कर सकते हैं. ठीक है Next सर, question. थैंक यू सर. No worries. Yeah. Next question, guys. ठीक है. So if guys no other question, okay, sir, I'll take the last question only because 11:30 I have a meeting as well. Sir, for the box we need to get a dead system. Not sure about Shagun on this. Again, you need to be check on the websites only. See, guys, I from my side, I never gone through this technology in the deep dive because this is not my domain area, core domain area. Basically, I learned these things just to make myself and enhance so that I can know the basic stuff of these things. So I don't think databases में इसका इतना requirement है. यहाँ पर requirement जो रहेगा आपका hashes का रहेगा, data structure का ज़्यादा requirement रहेगा आपका यहाँ पर blockchain के अंदर especially. ठीक है. Okay, so thank you so much, guys. You can connect me on the WhatsApp, LinkedIn, or the YouTube as well. I'll share this video soon with ma'am. Okay, and then we can connect again. Wait, I guess I forgot one thing. Okay, fine. Okay, you can share your feedback with ma'am, and then she can share with me. Thank you so much, guys. Stay home, stay safe. Bye bye. Now you can unmute and say bye, yaar. थैंक यू Thank you, सर. sir. Okay, thanks, guys. Bye. Thank you, sir. Yeah, thanks. Thank you, sir. थैंक यू सर. ओवर. 6 seconds. Leave.